Good morning, friends. Welcome to one more video of Trade with Edge pre-market report. So, guys, last 3 days were totally sideways in our market. So, एक बड़े up move के बाद we are just consolidating now, and market is deciding where to go next. So, let's start with our globally क्या हो रहा है. So, global market, if you see again one more day, Dow Jones, Nasdaq were down, mild down move in them. European markets were down. FTSE CAC were almost 1% to 0.87% down. Asian market में mix है. Gift Nifty is almost flat. Nikkei Straits Times Taiwan are down, and Kospi, Jakarta and Hang Seng, they are mild up. So mixed view from Asian market, but yes, Europe and US से down move ही दिख रहा है हमें in all the markets. So let's see आज क्या न्यूज अफेक्ट कर रहे हैं हमें. HG Infra bags order worth 376 crore for UP road project. NTPC Green subsidiary bags order worth 500 megawatt solar power project. Now कल NTPC Green stock was already showing some positive momentum and upside पे थोड़ा selling pressure आ गया. Closing was down, but yes, during the day it was in good momentum. IOB receives refund order worth 1359 crore. LTIM entered into strategic partnership with GitHub to transform enterprise software development. So they are going into AI based software development. Vishal Mega Mart 8,000 crore IPO opens for subscription, and gross grey market premium is showing around 25 rupees. So against the issue price of 78, there is a decent premium. SEBI, some regulation for algo trading are underway. They are planning to develop a performance validating agency जहाँ पे algos का performance का validation किया जाएगा. So yes, this is most welcome step by SEBI. Some regulation was needed for algos. Cement stock, CLSA expects cement prices to increase by 4%. Few days back, we have seen in news also that cement companies are mulling to increase the cement prices. PB Fintech, CLSA initiate buy with 2550 target. CMP is 2172, so almost we can expect a 20% upside as per CLSA's target. Zomato, Morgan Stanley maintains overweight on Zomato. Target is 355. That is 20% upside potential from current market price. Two important data point we are expecting this week. One, Indian CPI data and US CPI data. So respectively on Wednesday and Thursday, we expect that data. So that obviously keep market on little toes. एंड जैसे कैसे न्यूज फ्रंट अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है इससे तो मुझे आप मैसेज में बताइए. बिकॉज यस्टरडे हमने एक न्यूज देखा था दैट व्हाट वाज दैट स्टॉक ग्रीव्स कॉटन. ओके, in that there was a block deal and Vijay Kedia is a renowned investor. He acquired some stake in that worth 25 crores. So obviously that news will bring that stock into our radar, and yesterday stock gapped up. Still we were getting entry at 230 and stock closed at 250. So this way, many stocks I had captured using the news. So that's why, because these are the driving factors. These are the many times these news forms a trend changing factor for the stock. So guys, इस पे important है कि हम फोकस करें, एंड मैं ट्राई टू बेटर न्यूज में कैसे लेके आ पाऊँ, मैं उस पर फोकस करूंगा. नाउ माई ब्रेकआउट स्क्रीनर इज शोइंग मेनी स्टॉक. चोला इज अ डिसेंट चार्ट. नवीन फ्लोरिन, यूनाइटेड ब्रिवरीज, मैक्रोटेक इवन शोइंग सम ब्रेकआउट. HPCL एंड डॉक्टर लाल पैथ में लॉन्ग बिल्टअप भी था, एंड दिस इज शोइंग अ गुड ब्रेकआउट ऑल्सो. चलिए अब निफ्टी पे व्यू फॉर्म करते हैं. So as मैंने कहा था, so since last 3 days I am saying that after a big move and looking at the OI data, I sense some consolidation. Okay, and मैंने वैसे ही प्ले कर रहा हूँ. So I am not taking major direction bets. So direction just level wise bets मैं ले रहा हूँ, but
व्हाट आई एम डूइंग इज मैं साथ में नॉन डायरेक्शनल भी जा रहा हूं. सो इफ यू लुक एट लास्ट 3 days में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के स्ट्रैडल हैज गिवन ऑलमोस्ट यू कैन से 20% डिके इन दैट प्राइसेस. ओके, दैट्स अ गुड रिटर्न. अब कल हमने डिस्कस किया था दैट मार्केट टू बी इन रेंज, अपसाइड पे प्रेशर आएगा बट डाउन साइड पे वी माइट सी गुड सपोर्ट एट 24,500. सो मार्केट इज इन बाय ऑन द डिप्स एंड सेल ऑन द राइज. सो दोनों साथ में मैं कैसे बोल रहा हूं दैट अगर कोई अच्छी लेवल पे हमें मिल रहा है मार्केट तो वहां से हम लॉन्ग भी जाएंगे. एंड यस्टरडे वही हुआ, मेरा जो लेवल था 24,500, सो 520 से मार्केट घूमा एंड ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रिकवरी दे दिया. So I was little late to enter. Still, I could capture 50-60 points up move and वो profit में था तो I carried that position. Now an upside में pressure भी आएगा. So आज अगर हम लोग ये लेवल क्रॉस करते हैं तो yes यहाँ पे एक we can say a flag kind of pattern बन रहा है after big move. So bias is yes bullish but because of call selling एक pressure रहेगा. Now if you remember last expiry क्या हुआ था, मार्केट ने ट्रैप किया था कॉल सेलर्स को. तो एक जो डिप आया था उसमें काफी सारा कॉल राइटिंग हो गया था. देन ऑन एक्सपायरी डे दे पुल्ड द मार्केट अप एंड ऑल कॉल सेलर्स वर ट्रैप्ड. सो इज द सेम ट्रैप सेटिंग अप दिस वीक आल्सो? We have to see, but we'll go level by level wise. Okay, we won't predict the market. We'll just look at the data and we'll go level by level. Stock wise देखें तो Polyplex में there is a breakout. I can sense a cup and handle pattern. Emphasis on verge of breakout. A bigger rounding bottom kind of pattern is forming. DCM Sriram. This is a trend line breakout. We can also call it a channel breakout. And this is happening from a decent support line. So yes, volume are also huge. So maybe this kind of pattern could be forming, but ये शॉक एक रडार पे होना चाहिए. अब OI फ्रंट पे देखे, as we said that जो obviously कल जो मार्केट में फॉल आया टॉप से 24,520 तक, उस पे काफी कॉल राइटिंग हुआ है. सो ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ जितना call writing हुआ है. put writing is negligible. Some put unwinding also happened and then after going down around this level so definitely some call writers started writing at 24,500 also. एक sharp 100 point का रिवर्सल आया. अब अगर मार्केट आज ऊपर सस्टेन करता है तो if we look at this there is almost 40 lakhs call writing at 500 level. So they can withheld 150 पॉइंट जितना अपमूव तो वो लोग होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. बट जब 200 पॉइंट का अपमूव आएगा सो अबाउट 24,700 लेवल मार्केट अगर जाएगा दे माइट स्टार्ट कवरिंग देयर पोजीशन. यहाँ इतना ग्रेट नहीं है, नेग्लिजिबल है, बट यस ये दो स्ट्राइक है विच कुड बी अंडर अटैक. देन ऑब्वियसली जैसे ही ऊपर जाएगा मार्केट ऑल द स्ट्राइक विल कम अंडर दिस थिंग, बट दिस इज इंपॉर्टेंट स्ट्राइक 24,700. तो ये जो कॉल राइटर्स है almost you can say it's huge, right? one CR, more than 1 crore. ये हमें closely watch करना है. Market will give sharp move only if these writers are under attack and they start panicking. तो ये जो लेवल है 24,700 का, इसे हम closely watch करेंगे. So till Thursday second half I don't expect a major move. Only if they trap these sellers तब एक बड़ा मूव आ सकता है. अदरवाइज ये वीक मुझे साइडवेज ही लग रहा है. कंडीशन टू 24,700 कॉल राइटर्स को मैं ट्रैक करूंगा क्लोजली व्हाट दे आर डूइंग. नाउ लेट्स लुक एट इंडाइसेस. व्हाट इज व्यू फॉर टुडे? सो निफ्टी एज मैंने कहा था कल दैट ये हमारा लेवल रहेगा जिसके नीचे सेल ट्रेड हम लोग लेंगे एंड टिल 24,500 तक हम लोग वो होल्ड कर सकते हैं. वहां से एक रिकवरी भी आ सकता है बिकॉज दैट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. एंड वही हुआ कल. सेल ट्रेड मिला, एक छोटा सा टारगेट मिला एंड मार्केट में एक रिकवरी आ गया. नाउ व्यू इज दैट आज का भी हम लोग लेवल वाइज प्ले करेंगे. बायस थोड़ा बुल साइड रहेगा. सो अपसाइड पे 24,680 के ऊपर लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं फॉर 24,767 टारगेट एंड नेक्स्ट target would be 24,854. But yes,
24,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ओआई राइटर वालों का रहेगा प्रेशर ऊपर में, बट अबो दिस एक बुलिश ट्रेड हम लोग ट्राई कर सकते हैं एंड सेल ट्रेड वुड बी बिलो 24,577 फॉर अ स्मॉल टारगेट ऑफ टिल 24,500। ये लेवल ब्रीच हुआ तो एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो दोनों लेवल पे 24,500 पे देयर आर हेवी पुट राइटर्स एंड 24,700 पे देयर आर हेवी कॉल राइटर्स, सो दैट्स कीपिंग द मार्केट विद इन अ रेंज। अब निफ्टी बैंक में देखते हैं क्या हो रहा है। सो बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में मेरा बाय लेवल रहेगा 53,605, वो लेवल के ऊपर हम लोग एक बुलिश ट्रेड लेंगे टिल 53,888 एंड 54,000 लेवल तक। डाउन साइड पे ब्रेकडाउन लेवल रहेगा 53,300, बिलो दैट 53,052 वन टारगेट एंड 52,572 वुड बी द सेकंड टारगेट, बट मोस्ट प्रोबेबल हम लोग आज ऊपर की साइड फोकस करेंगे बिकॉज एक अप मूव आई एम एक्सपेक्टिंग लुकिंग एट द यस्टरडेज डाउन मूव जो रिकवरी आया बॉटम से। एक थोड़ा स्ट्रक्चर जूम आउट करके देखिए अगर बैंक निफ्टी में तो क्या हो रहा है। सो इफ यू रिमेंबर गाइस, यहां पे ये जो लेवल था, ओके, ये जब ब्रेकआउट आया था यहां पे वी डिस्कस दैट टारगेट फॉर दिस ब्रेकआउट वुड बी एज हाई एज, एक ये जोन आ सकता है और इसके ऊपर भी एक टारगेट आ सकता है। वी आर आई थिंक हेडिंग फॉर दैट। सो ये जो लेवल है अराउंड 54,500, दैट इज सो ऑलमोस्ट 890 पॉइंट्स मूव इन बैंक निफ्टी, वो एक पॉसिबल है। अब यहां पे एक फ्लैग पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट आया यहां पे, और एक और फ्लैग पैटर्न यहां पे बन रहा है। सो यस, बायर्स हम लोग बुल साइड का ही है। आई वाज सेंसिंग डाउन मूव जो हम लोग कल सेंस कर रहे थे आ गया, लेवल पे सपोर्ट भी आ गया, सो दैट इज कंफर्म दैट नाउ सपोर्ट इज देयर ऑन डाउन साइड। अब क्विकली हम लोग एक इंडाइसिस देख लेते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडाइस आईटी है विच वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द चार्ट, सो दैट्स व्हाई एम्फेसिस हमारे चार्ट पैटर्न में भी है। निफ्टी फिनांस इज द सेकंड इंडाइस जो एक अच्छा लग रहा है। रियल्टी इंडेक्स, इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, सो मैक्रोटेक इज देयर इन आवर ब्रेकआउट, प्लस आप डीएलएफ चेक कर सकते हैं। सीएनएक्स मेटल इज फ्रेश ब्रेकआउट आया है एक, एंड ऑब्वियसली कल जो जिस तरह के जिंदाल स्टील और ये सब स्टॉक चल रहे थे। पीएसयू बैंक वुड बी अनदर सेक्टर। अब पीएनबी में कल एक थोड़ा बेटर न्यूज था, 3,000 करोड़ का रिकवरी फ्रॉम चौकसी, एंड सो ये सेक्टर हम लोग देख सकते हैं। ज्यादा 5 सेक्टर जो एक थोड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अब जो वीक सेक्टर देखिए अगर, तो एफएमसीजी इज द वीकेस्ट, देन फार्मा इज नॉट कैचिंग अप द स्टीम येट, ऑटो इज द वीक, सो एफएमसीजी ऑटो बोथ आर ड्यू टू डिमांड। नाउ लेवल क्रॉस करेंगे तो हम लोग व्यू ले सकते हैं, बट स्टिल टिल नाउ आई डोंट सी एनीथिंग इन दिस। ऑयल एंड गैस इज नॉट दैट ग्रेट, एनर्जी इज नॉट डूइंग ग्रेट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ये जस्ट ट्राइंग टू रिकवर, एंड इंफ्रा सम रिकवरी पॉसिबल। बट यस, अगर मुझे स्ट्रेंथ ट्रेड करनी है तो मैं ये ऑर्डर में ट्रैक करूंगा, सीएनएक्स आईटी, सीएनएक्स फिनांस, सीएनएक्स रियल्टी एंड मेटल एंड पीएसयू बैंक्स, इन दैट ऑर्डर। सो थैंक यू गाइस, दैट्स फॉर टुडे। एंड गाइस बिफोर लीविंग एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ ऑफलाइन सेमिनार इन बॉम्बे। सो अगर आप बॉम्बे से है तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया है वो फिलअप कीजिए। अगर आपको हमारे ऑफिस पे आके समझना है ओआई डेटा तो आप आ सकते हैं। आप उसमें सिर्फ ऑफलाइन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा जिससे आपको हम लोग इनविटेशन भेजे फॉर ऑफलाइन। सो इट वुड बी ऑन कमिंग सैटरडे इवनिंग, and we are planning to organize it on regular basis, so you can visit our office. So thank you guys। आपको ऑनलाइन अटेंड करना है ऑफलाइन, आप ऑप्शन में हमें सिलेक्ट करके बताइएगा। ओके गाइस, so see you on Saturday for our offline webinar. Thank you guys।